تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید کے اندر 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے حق کو پہچانو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ سے پیش آؤ، ان کے سامنے نرم لہجے میں بات کرو، ان کی خدمت کرو۔ نبی نے فرمایا والدین تمہاری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی خدمت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی اور ان کی نافرمانی تمہیں دوزخ میں داخل کر دے گی۔ اور والدین میں سے سب سے زیادہ خدمت کا استحقاق کس کو ہے؟ سب سے زیادہ خدمت کا حق اپنی ماں کا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ والدین میں سے کس کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ نبی نے فرمایا تیری ماں کا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ نبی نے فرمایا تیری ماں کا۔ صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے کہ اس کی خدمت کروں؟ نبی نے فرمایا تیری ماں کا۔ جب چوتھی مرتبہ اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد مجھ پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ نبی نے فرمایا تیرے باپ کا۔ 3 مرتبہ نبی نے فرمایا تیری ماں کی خدمت کر، تیری ماں کی خدمت کر، تیری ماں کی خدمت کر۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاد کے فضائل سنے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنا، یا رسول اللہ میں تو جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی نے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ وہ صحابی پھر آئے، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی نے پھر پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ وہ صحابی تیسری مرتبہ آئے، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی نے پھر پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ صحابی کہتے یا رسول اللہ ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح میں ابو علی سینا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیوں پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس لیے کہ والدہ اپنے بچے کی پرورش میں، بچے کی پیدائش میں 3 بڑے مراحل سے اور 3 بڑی تکلیفوں سے گزرتی ہے، تب جا کر بچہ پیدا ہو کر پرورش پاتا ہے۔ وہ 3 تکلیفیں کون سی ہے؟ نمبر 1 حمل کی، نمبر 2 وضع حمل، نمبر 3 دودھ پلانے کی تکلیف۔ حمل کی، ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھتی ہے، 9 مہینے تک کھانا بھی بنا رہی ہے، شوہر کی خدمت بھی ہو رہی ہے، ساس سسر کی خدمت بھی ہو رہی ہے، گھر کے کام ہو رہے ہیں، کتنے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کا وزن اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیٹ میں تھوڑی سی پتھری ہو جائے ہمیں سکون نہیں آتا ہے، جب تک آپریشن کرا کے نکلوا نہ لے ہمیں سکون نہیں آتا ہے، اور ماں 2 کلو کا وزن 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھتی ہے۔ نبی نے فرمایا ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ دوسری تکلیف درد ذہ کی تکلیف، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یا تو ماں کی زندگی بچے گی یا بیٹے کی زندگی بچے گی۔ اگر بچہ چاہتے ہو تو ماں کی زندگی کا کوئی سوال نہیں ہے، ماں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے ماں کی زندگی کی۔ اندازہ لگاؤ ماں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ سب سے بڑی تکلیف بچے کی پیدائش کے وقت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی عورت بچہ پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 بڑی تکلیفیں، اور تیسری تکلیف دودھ پلانے کی، اور تیسری تکلیف دودھ پلانے کی، یعنی 2.5 سال تک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے چپکا کر رکھتی ہے۔ 2.5 سال تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرتی ہے۔
कुरान कहता है हमलतहु उम्मुहु कुरान व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने पेट में उठाया और तकलीफ से तुम्हें पैदा किया है और 2.5 साल तक तुम्हें अपनी छाती से चिपका कर रखा है। 1 सेकंड के लिए अपनी छाती से जुदा नहीं किया, न तकलीफों को देखा, न परेशानियों को देखा, हर हाल में अपने बच्चे की खिदमत में लगी हुई है। खुद भूखी रहकर अपने बच्चे को खिला रही है, खुद प्यासी रहकर अपने बच्चे को पिला रही है, खुद भीगे पर सोकर अपने बच्चे को सूखे पर सिला रही है, खुद परेशानियों में निढाल होकर, बीमारियों में निढाल होकर अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती है। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, माँ सब कुछ कर सकती है, अपने बच्चे के बारे में कभी भी बुरा ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाती है। इसलिए माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ की खिदमत किया करो। अरे जो माँ ने तकलीफें हमारे लिए उठाई है, अल्लाह की कसम इसकी खिदमत का हम हक अदा नहीं कर सकते। कैसी तकलीफें हमारे लिए उठाई है, क्या क्या परेशानियां हमारे लिए माँ ने झेली है, तब जाकर हमारी परवरिश होती है, तब जाकर हम पांव पर चलना सीखते हैं। और कैसी खिदमत करती है माँ, टूट कर खिदमत करना। सुबह नाश्ते की फिक्र, दोपहर की खाने की फिक्र, बेटा खाना खाया नहीं, दोपहर का खाना बेटा खाया नहीं, कहाँ गया था, किसके साथ गया था, और बेटा ये खाना अच्छा नहीं लगता, ये खा ले। और खाने बना बना कर खिलाती है, चूल्हे पर जल जल कर अपने बच्चे की परवरिश करती है। अगर एक टाइम का बच्चा खाना ना खाए, माँ कहती है बेटा अगर ये पसंद नहीं है तो ये बना लेती हूँ, ये अच्छा नहीं लगता तो ये बना देती हूँ, दूध नहीं खाना है तो दही ला देती हूँ। यानी किस तरह टूट कर माँ मोहब्बत करती है, किस तरह मेरा बच्चा खाना खा ले, किस तरह इसकी बीमारी ठीक हो जाए, किस तरह ये सेहतमंद हो जाए, किस तरह इसकी परेशानियां इससे दूर हो जाए। यानी कितना टूट कर मोहब्बत करती है। और ये सिर्फ 1 दिन 2 दिन नहीं, 10 साल 20 साल जब तक शादी नहीं होती है, माँ पका पका कर खिलाती है। और अल्लाह की कसम उस पर कोई मुआवजा नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, बगैर मुआवजे के माँ खाना बना बना कर खिलाती है। कभी रखो मजदूर को, कभी रखो किसी खाने बनाने वाले को, 1 महीना होगा तनख्वाह लेने आ जाएगा, फिर उसको उससे कोई गरज नहीं है कि खा रहा है कि नहीं। माँ जब तक बच्चा खाना ना खाए, माँ खाना नहीं खाती। माँ को सुकून नहीं आता जब तक उसका बेटा खाना नहीं खाता। अल्लाह की कसम माँ बाप के रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। किस तरह टूट कर मोहब्बत करती है, किस तरह टूट कर अपने बच्चे से प्यार करती है। इसलिए माँ बाप के हक को पहचानो, माँ के कहने पर लब्बैक कहो, बाप के बुलावे पर लब्बैक कहो। एक वाकया मशहूर है कि एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा दीवार पर क्या है। दीवार पर कौवा बैठा था। बाप ने पूछा बेटा दीवार पर क्या है। बेटा कहता अब्बू कौवा है। बाप ने फिर पूछा बेटा दीवार पर क्या है। बेटा कहता अब्बू कौवा है। बाप ने तीसरी मर्तबा पूछा बेटा दीवार पर क्या है। बेटा कहता अब्बू समझ में नहीं आता, 3 मर्तबा बता चुका हूं कौवा है कौवा है। यानी उसने झड़क कर बात की, मुंह चढ़ाकर अपने बाप से बात की। तो बाप ने कहा बेटा तू छोटा था, इस दीवार पर कौवा बैठा था, तूने मुझे 20 मर्तबा पूछा अब्बू दीवार पर क्या है, अब्बू दीवार पर क्या है। मैंने 20 मर्तबा बगैर पेशानी पर बल आए मैंने कहा बेटा कौवा है, बेटा कौवा है, बेटा कौवा है। जिस तरह तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें बचपन में पाला है, तुम अपने वालिदैन को 55 में बुढ़ापे की उम्र में पाल कर दिखाओ। उनकी खरी खोटी सुन लिया करो, वो डांट डपट करे सुन लिया करो। इसलिए कि माँ बाप है तुम्हारे खालिक मजाजी है, खालिक हकीकी अल्लाह ताला है, खालिक मजाजी तुम्हारे वालिदैन है। इस दुनिया में तुम्हारे आने का जरिया तुम्हारे वालिदैन है। माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ के हुक्म पर लब्बैक कहा करो, माँ का कहना माना करो। आज का नौजवान अपने मोबाइल में इतना मस्त हो चुका है, फिल्म स्टारों को देखने में इतना मस्त हो चुका है, टीवी देखने में, फिल्मों को देखने में, टिकटॉक को देखने में, पूरा दिन
मोबाइल लेकर टिक टॉक देखता रहता है, माँ बुलाती है, इसके पेशानी पर बल आ जाते हैं, इसे टिक टॉक वाले अच्छे लगे, इसे फिल्म स्टार अच्छे लगे, माँ के कहने पर तेरे पेशानी पर बल आ जाते हैं। बता तेरी जिंदगी कहां जा रही है? जिस माँ ने तुझे पाला, तेरे लिए तकलीफें देखी, तेरे लिए परेशानियां बर्दाश्त की, खुद भूखी रहकर तुझे खिलाया, खुद प्यासी रहकर तुझे पिलाया, खुद भीगे पर सोकर तुझे सूखे पर सुलाया, तेरे पखाने को साफ किया है। आज जब तू बड़ा हो गया, चलने के लायक हो गया, जब तेरे पास बीवी आ गई, जब तेरे पास मोबाइल आ गया, उस तू माँ बाप के एहसानात को भुला बैठा है। इसीलिए अल्लाह को पता था, अल्लाह को पता था इंसान सबसे पहले अपने मोहसिनीन के एहसान को भूल जाएगा। अल्लाह ने कुरान में वसीयत की, ववस्सैनल इंसान बिवालिदै, ऐ इंसानों मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अपने वालिदैन के बारे में हुस्न सलूक करने का। हुक्म नहीं, वसीयत हुक्म से बड़ी चीज है। अल्लाह फरमाते मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। जिन माँ बाप ने तुम्हारे लिए तकलीफें उठाई है, आज जब वो तकलीफ में है तू माँ बाप को भूल बैठा है। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो। अगर माँ बुलाए, इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो, नफल नमाज पढ़ रहे हो और माँ तुझे बुला रही है, नफल नमाज तोड़ दो, माँ के हुक्म पर लब्बैक कहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, बाप का साया पहले सर से उठ चुका था। अभी 6 साल की उम्र को पहुंचे, मां का साया सर से उठ चुका था। और एक मौके पर अपनी मां को याद करते हुए नबी ने फरमाया, काश मेरी मां जिंदा होती, काश मेरी मां जिंदा होती, मैं अपनी मां की ऐसी खिदमत करता, मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर होता, सूरत फातिहा पढ़ चुका होता, अल्लाहु अकबर कह चुका होता, सूरत फातिहा पढ़ चुका होता, पीछे से मेरी मां मुझे बुलाती, बेटा मोहम्मद, मैं अपनी मां की खातिर नमाज तोड़ देता। अंदाजा लगाओ कैसी नबी ने अपने मां बाप की खिदमत के जज्बात बताए हैं। मां की खिदमत का हक यह है कि तुम मां बाप के लिए टूट पड़ो, मां बाप की खिदमत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। अल्लाह की कसम, इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं है। एक आदमी नमाज पर नमाज पढ़ता है, रात भर नवाफिल पढ़ता है, दिन भर रोजे रखता है, हज पर हज, उम्रे पर उम्रा, तस्बीह पर तस्बीह, जिक्र अज़कार लगा हुआ है, लेकिन वालिदैन का नाफरमान है, सारी इबादतें मुंह पर मार दी जाएगी। कोई काम का नहीं उम्रा, कोई काम का नहीं तुम्हारे नवाफिल, अगर माँ बाप तुम्हारे नाराज है, अगर माँ बाप तुमने माँ बाप का दिल दुखाया है, कोई इबादत तुम्हारे काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए नबी ने फरमाया, रिज़ा रब्बि रिज़ल वालिद, तो रब की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है। वालिदैन काफिर भी हो, उनके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है नबी ने। उनके सामने नरम लहजे में बात करने का हुक्म दिया है, उनके सामने अच्छे अखलाक के साथ पेश आने का हुक्म दिया है। सहाबा इकराम ने इस काम को कर कर दिखाया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया, जब उनको काफिरों ने मारा, जब पहला खुतबा अबू बकर सिद्दीक ने काबे के अंदर खड़े होकर दिया था, उस वक्त जो कुफ्फार ने जुल्म और तशद्दुद किया है और जब अबू बकर सिद्दीक की हालत बनी थी, उनकी वालिदा उनके खानदान वाले उठाकर घर लाए और जब अबू बकर सिद्दीक को होश आया है, अपनी वालिदा से कहा कि मुझे नबी के बारे में बताओ। और जब उम्मे जमील ने उनको बताया, नबी दारे अरकम में मौजूद है, नबी को वहां ले जाया गया। नबी ने अबू बकर सिद्दीक के चेहरे को देखा, अबू बकर सिद्दीक ने नबी के चेहरे को देखा और आंखों से आंसू जारी हो गए। अबू बकर सिद्दीक कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको देखकर मेरे सारे जख्म खत्म हो गए, या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा के लिए हाथ उठाकर दुआ कीजिए। काफिरा वालिदा थी, नबी के सामने हाथ उठाकर दुआ करवाई अपनी वालिदा के लिए। इसीलिए वालिदैन का हक बहुत ज्यादा है। वालिदैन की खिदमत करो, उनके हुकूक को पहचानो, उनकी खिदमत करो, उनका अदब करो, उनके सामने नरम लहजे में बात करो। कुरान कहता है, वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, उनके सामने उफ तक भी न कहो, उनके सामने नरम लहजे में बात करो। इसीलिए वालिदैन की खिदमत बहुत जरूरी है, उनके एहसानात को याद रखना बहुत जरूरी है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।